afternoon to all. I am Savita, student of GNM third year. Today I am here to demonstrate the procedure of antenatal exercise. First of all, definition of antenatal exercise. Antenatal exercise are the exercise which help the antenatal mother to adapt the physiological changes during the pregnancy and to tone up the muscles which are stressed during the pregnancy. There are some purposes of antenatal exercise. They are to tone up the muscles which are stressed during the pregnancy, to prevent from backache, to prevent leg cramps, ankle edema, to manage the minor ailments which occur during the pregnancy, to provide calm and comfortable environment to the antenatal mother, to prepare the antenatal mother to the pregnancy, and to strengthen the pelvic muscles. Five principles should be kept in our mind during the procedure of antenatal exercise. They are preparation of nurse, preparation of articles, preparation of unit and client, step of procedure, termination of article, record and report, and health education. Today I am going to explain 9 antenatal exercise. They are breathing exercise, abdominal breathing exercise, alternate nostril exercise, Taylor press or butterfly exercise, pelvic tilting exercise, knee rolling exercise, pelvic floor exercise, hip up drawing exercise, foot and leg exercise. First of all, deep breathing exercise. It helps to strengthen the diaphragm and to provide proper oxygenation to the mother and to the fetus. डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले आप एक समतल सतह पर बैठ जाएं, अपनी कमर को सीधा रखें तथा अपने हाथों को अपने घुटने पर रखें। अपने नाक से लंबी सांस लें और सांस को कुछ समय के लिए रोक कर रखें और अपने मुंह से सांस को बाहर छोड़ें। इस एक्सरसाइज को एंटीनेटल मदर एक दिन में 8 से 10 बार और एक बार में 10 से 15 बार कर सकती है। After that, abdominal breathing exercise. It will help to strengthen the transverse muscles of the abdomen. Abdominal breathing exercise करने के लिए अपने राइट हैंड को अपने लोअर एब्डोमेन पर रखें और अपने लेफ्ट हैंड को अपनी चेस्ट पर रखें और अपने नाक से लंबी सांस अंदर लें, सांस को थोड़ी देर तक रोक कर रखें और सांस को बाहर छोड़ें। इस एक्सरसाइज को एंटीनेटल मदर दिन में 8 से 10 बार और एक बार में 4 से 5 बार कर सकती है। After that, alternate nostril exercise, which is also known as अनुलोम विलोम प्राणायाम। नोस्ट्रिल एक्सरसाइज को करने के लिए अपने अंगूठे से अपने राइट साइड के नोस्ट्रिल को बंद करें और अपने लेफ्ट साइड के नोस्ट्रिल से लंबी सांस लें। सांस को थोड़ी देर तक रोक कर रखें, फिर अपने लेफ्ट साइड के नोस्ट्रिल को बंद करें और राइट साइड के नोस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ें। इस एक्सरसाइज को एंटीनेटल मदर एक दिन में 10 से 12 बार और एक बार में 15 से 20 बार कर सकती है। आफ्टर दैट, टेलर प्रेस एक्सरसाइज विच इज ऑल्सो नोन एज बटरफ्लाई एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए अपने दोनों पांव को आपस में जोड़ लें तथा अपने पांव को अपने शरीर के पास ले आए। अपने घुटनों को इस तरह हिलाएं जैसे तितली अपने पंखों को हिलाती है। यह मसल एंटीनेटल मदर को ड्यूरिंग डिलीवरी हेल्प करती है। यह एक्सरसाइज एंटीनेटल मदर को ड्यूरिंग डिलीवरी हेल्प करती है। आफ्टर दैट, पेल्विक टिल्टिंग एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए एंटीनेटल मदर एक प्लेन सरफेस पर लेट जाए, अपने घुटनों को मोड़ ले, अपने पांव के बीच में थोड़ी दूरी बनाकर रखे तथा अपने शरीर को कमर से हवा में उठाए। अपने शरीर का भार अपने हाथों और अपने पांव पर दे। एंटीनेटल मदर जितनी देर तक अपने भार को सह सकती है उतनी देर तक इस पोजीशन में बने रहे, उसके बाद अपनी आरामदायक स्थिति में वापस आ जाए। Pelvic tilting exercise will help the antenatal mother to prevent from uterine pelvic tilting exercise will help the antenatal mother to prevent from uterine prolapse and to strengthen the pelvic muscles. The next exercise is knee rolling exercise. This exercise will help the antenatal mother to prevent from backache. इसको करने के लिए एंटीनेटल मदर अपने घुटनों को किसी भी एक दिशा में मोड़ ले और अपने मुंह को उस दिशा की विपरीत दिशा की ओर मोड़े। थोड़ी देर इस स्थिति में बने रहने के बाद एंटीनेटल मदर खुद को सेंट्रल पोजीशन में ले आए
तथा विपरीत दिशा की ओर अपने घुटने और अपने चेहरे को मोड़ ले। नेक्स्ट वन इज दी pelvic floor exercise. This exercise will help the antenatal mother to strengthen the muscle of anal region, vagina and urethra. इस एक्सरसाइज को करने के लिए एंटीनेटल मदर अपने घुटनों को मोड़ ले, अपने पैरों के बीच में थोड़ी दूरी बनाए रखे तथा अपने एनाल रीजन, यूरेथ्रा एंड वेजाइना को 1 रुपए के सिक्के के जैसे होल्ड करके रखे। नेक्स्ट वन इज दी हिप अप ड्रॉइंग एक्सरसाइज. This exercise will help the antenatal mother to relieve from the leg cramps and to relieve the ankle edema. इस एक्सरसाइज को करने के लिए एंटीनेटल मदर अपनी एक टांग को हवा में ऊपर उठाए और वह जितनी देर तक अपनी टांग को ऊपर उठाकर रख सकती है उठाकर रखे। उसके बाद वह आरामदायक स्थिति में आ जाए तथा अपनी दूसरी टांग को इसी तरह ऊपर उठाए। Last one is the foot and leg. Last one is the foot and leg exercise. This exercise will enhance the circulation to the lower limbs and prevent the mother from the ankle edema. इस एक्सरसाइज को करने के लिए एंटीनेटल मदर किसी चेयर, बेड या किसी स्टूल पर बैठ जाए, अपनी एक टांग को आगे की ओर करे, अपने पांव को पहले अप एंड डाउन मोशन में हिलाए, उसके बाद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाए। इसी तरह अपनी दूसरी टांग को भी आगे बढ़ाए और अपने पांव को अप एंड डाउन एंड देन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोशन में घुमाए। That's all about antenatal exercise. Thank you.